Hi everyone, my name is Vinita and this is an orientation session for UPSC Maths Optional. First, we will be talking about paper 1 in this session, then we will be talking about paper 2 in some another session. So basically here I'll be telling you the syllabus, the book list and the strategy for each and every topic. So paper 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं. In paper 1 we have in total six sections. 6 sections are there. I mean to say 6 subjects are there. ठीक है. जो आपका पेपर होता है यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का, जस्ट लेट मी गिव मी ए मोमेंट. सो जो आपका यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का पेपर होता है उसके अंदर देर आर 2 sections, सेक्शन ए एंड देन देर इज सेक्शन बी. देर आर 4 questions in section A. There are 4 questions in section B. Out of these 4 questions, question number 1 is compulsory. This question is compulsory. And in section B, the 5th question is compulsory. It remains compulsory. ये आपको attempt करना ही होता है. Then there is second, third and fourth question. Third, fourth question and 6th, 7th and 8th questions. हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 50 मार्क्स का होता है. ईच क्वेश्चन वेज 50 मार्क्स. हर क्वेश्चन का वेटेज 50 मार्क्स का होता है. सो इन टोटल आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं. ठीक है. आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. सो ऑफ दीज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6th, 7th, 8th 3 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड. सो 2 + 3. ठीक है. नाउ इन द सेक्शन ए पेपर 1, इफ वी टॉक अबाउट पेपर 1, सेक्शन ए में जो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं दोज आर लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री. these three subjects are covered in section A, and in section B the subjects covered are vector calculus, vector analysis, ordinary differential equation, statics and dynamics. So this is the whole pattern of the paper 1 की अगर हम बात करें. Now let's talk about each and every individual sections. अब आपके दिमाग में पहला थॉट तो ये आ रहा होगा कि can I skip any section, any subject? See, you cannot skip any subject. उसका रीज़न ये होता है कि ये जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चंस हैं इनमें मिक्स क्वेश्चंस आते हैं. ऐसा कभी नहीं होगा कि सेकेंड क्वेश्चन आपका सिर्फ लीनियर से रहेगा या फिर सिर्फ कैलकुलस से रहेगा. सो दे बेसिकली कंबाइन ऑल 3 sections इन दीज क्वेश्चंस. इन तीनों क्वेश्चंस में दे कंबाइन ऑल 3 subjects. सिमिलरली इन दीज 3 questions दे कंबाइन ऑल दीज 3 subjects. हाँ, ये रहता है कि इन वन ऑफ द क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहेगा. फॉर इंस्टांस इन 6th question द वेटेज ऑफ ODE इज more as compared to vector analysis and statics and dynamics. ऐसा रहता है कि one subject is weighing more than the other subject, but ऐसा कभी नहीं होता है कि entire question is from one single subject, है ना. So that is why you have to study each and every subject. इसका reason ये भी है, they ask all sections, all subjects in the compulsory question, right? I mean in compulsory question, the question will remain from linear algebra, from calculus as well as from analytic geometry. तीनों से question रहेगा. Similarly in section B, 5th question तीनों से question रहेगा. Vector से भी रहेगा, ODE से भी रहेगा, statics and dynamics से भी रहेगा. That is why you cannot skip any subject. Now the very first doubt that I come across कि in which order should I cover the subjects? Which subject to be taken first? See, this is totally your choice, but I won't suggest you to go for statics and dynamics before going for other sections. So you cannot start from the difficult section. नहीं तो क्या होगा, आप खुद ही disinterested हो जाओगे. So I would suggest you to opt for either linear algebra or for ODE. You can start from vector, you can start from linear algebra, you can start from ODE. और यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम वेक्टर कैलकुलस. वेक्टर तो मैंने पहले ही बता दिया, वेक्टर, लीनियर अलजेब्रा, ODE. और यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम कैलकुलस. कैलकुलस से भी शुरू कर सकते हो.
है ना। बाकी एनालिटिक, ज्योमेट्री एंड स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स से स्टार्ट मत करना, एनालिटिक इज वे मोर कॉन्सेप्चुअल एंड टॉकिंग अबाउट स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स इट इज़ basically physics oriented subject, so ultimately it will disinterest you and you may leave your optional preparation. ऐसा नहीं करना चाहते ना? Okay, now let me go through the each subject one by one. I'm first taking linear algebra. See, talking about the important topic, syllabus आप सभी के पास होगा. If you don't have the syllabus, I'll mention the website link in the description below this lecture. वहाँ से आप syllabus डाउनलोड कर सकते हो. मैं यहाँ पर आपको ये बता देती हूँ कि which topics are basically important in linear algebra. So first of all, you have to cover the basics of matrices. You have to go through the basics of matrices. It's almost similar to the matrices that we studied in our 12th class. The types of matrices, matrix multiplication, finding the inverse of the matrix, adjoint, minors, cofactors. So everything is there. Everything related to the matrices is there in this topic basically. Then there are some theorems related to matrices like transpose, Q symmetric, symmetric, Hermitian, Q Hermitian. So उनसे रिलेटेड जो भी बेसिक थ्योरम्स हैं, पहले यूपीएससी पूछता था बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चंस. दीज डेज यूपीएससी डोंट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस, बट सी दीज आर फंडामेंटल्स एंड यू नो फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स. सो इसलिए आपको ये कवर करना पड़ेगा. देन द टॉपिक यू नीड टू कवर इज रैंक ऑफ मैट्रिसेस. After this, you need to cover the system of equations. Consistency and inconsistency. After this, you need to cover the eigenvalues, eigenvectors plus eigenvectors. After this, you need to cover the Cayley-Hamilton theorem, CHT. Proof needed नहीं है. Hamilton theorem, only statement plus questions. ठीक है. क्वेश्चंस कौन कौन से? इनवर्स फाइंड करना यूजिंग केली हैमिल्टन थ्योरम एंड सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन. These two things are needed to be covered from Cayley-Hamilton theorem. Then there is topics vector space के बाद हमारा आ जाता है subspaces. In vector space you will be dealing with vectors only, now row vector, column vector, and after that you will be dealing with linear dependent and linear independence of vectors. और यहाँ से हम लोग जंप कर जाते हैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि अल्टीमेटली हमें लीड करेगा बेसिस की तरफ. बेसिस से फिर हम लोग लीड कर जाएंगे डायमेंशन पर. डायमेंशन ऑफ सबस्पेस, आपने क्वेश्चन देखा होगा, डायमेंशन ऑफ ए सबस्पेस. और ये सब पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है, आफ्टर रीडिंग ऑल दिस आपको पढ़ना पड़ेगा द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में किसी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर प्रूव करना, ये पूछ सकते हैं. फिर उसके बाद इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूछ सकते हैं आपसे. इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. दे कैन आस्क यू द रेंज स्पेस, नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. रेंज स्पेस, नल स्पेस, एंड दे कैन आस्क यू द रैंक एंड नलिटी. रेंज स्पेस से ही रैंक मिलती है, नल स्पेस से हमें नलिटी मिलती है, नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ऑल गुड.
सो ये सारा कुछ आपसे पूछ सकते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में ही जनरल रिप्रेजेंटेशन भी पूछ सकते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी। सी अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या है, बट व्हेन यू विल बी रीडिंग लीनियर अलजेब्रा ना, दिस लिस्ट विल हेल्प यू ए लॉट। आई गारंटी यू अगर इन टॉपिक से बाहर क्वेश्चन आ जाए तो, है ना, इतना सारा एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको लिटरली ये बता सकती हूँ कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है वहाँ से। जैसे मैंने यहाँ पर डायगोनलाइजेबिलिटी नहीं लिखा, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, बट डायगोनलाइजेबिलिटी से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट स्टिल आप कवर कर लेना डायगोनलाइजेबिलिटी, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो वेक्टर स्पेस है ना, और फिर ये लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स हैं, यहाँ से कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स आपको कवर करनी है, ये वाली थ्योरम्स आपको कवर करनी है। जैसे लास्ट ईयर देयर वाज दिस वन थ्योरम आस्क्ड, बिफोर दैट ऑल्सो देयर वाज दैट वन थ्योरम आस्क्ड, सो मैनी अ टाइम्स यूपीएससी डज आस्क थ्योरम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो ये कवर कर लेना, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू द बुक लिस्ट फॉर द सेम बुक लिस्ट। सी हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक नहीं है, सो डोंट एवर थिंक कि देयर शुड बी वन बुक फॉर यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल एंड दैट विल बी इनफ, ऐसा नहीं है। देयर विल बी एटलीस्ट 2 to 3 बुक्स पर सब्जेक्ट, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ जो मेन बुक्स हैं, यू कैन परचेज देम। एक तो लीनियर अलजेब्रा में द फर्स्ट बुक इज मैट्रिसेस बाय कृष्णा सीरीज, मैट्रिसेस बाय कृष्णा सीरीज। देन देयर इज ए बुक ऑफ लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा टाइटल करके ही आती है ये बुक, लीनियर अलजेब्रा, सेम बाय कृष्णा सीरीज, बाय कृष्णा सीरीज, ठीक है। एक शॉम सीरीज की बुक आती है, शॉम्स आउटलाइन। आई डू नॉट फाइंड इट हेल्पफुल पर्सनली, रीज़न है क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम्स इसमें दी गई हैं एंड देर आर मेनी प्रॉब्लम्स एंड दोज आर नॉट बेसिकली वर्ड प्रैक्टिसिंग, सो यू कैन नॉट प्रैक्टिस जस्ट द सिंपल क्वेश्चंस, मैनी सिंपल क्वेश्चंस। आपके यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस ही आप प्रैक्टिस कर लो, वही बहुत सारे मिल जाएंगे। PYQs की बात करें तो 2010 to 2024 यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है, इतने PYQs तो आपको करने पड़ेंगे। नाउ दीज आर द बुक्स। इसके अलावा देर इज़ बुक होफमैन कुंज करके एक बुक आती है विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द थ्योरम्स, बट रहने देना, है ना, ये काफ़ी है। इसके अलावा यू कैन कवर द इंडिविजुअल टॉपिक्स, फॉर इंस्टांस रैंक ऑफ मैट्रिसेस मैंने पढ़ाया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मैंने पढ़ाया हुआ है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स मैंने पढ़ाया हुआ है, केले हैमिल्टन थ्योरम आई विल टीच इन ए डे और टू, है ना। तो द इंडिविजुअल टॉपिक्स यू कैन कवर ईदर फ्रॉम यूट्यूब और यू कैन ज्वाइन माई कोर्स एज वेल, आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। अब यार ये या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसमें देर इज़ ए सिस्टम ऑफ QR कोड, QR कोड का भी सिस्टम है यहाँ पर, एक्चुअली मैं उतना ही यूज़ नहीं किया है मैंने। एक्सपोर्ट ऑल पेजेस, जस्ट द करंट पेज आई नीड ना, जस्ट द करंट पेज वी नीड, ठीक है। सो ये आई गेस ये आप QR कोड को यूज़ कर सकते हो डाउनलोड करने के लिए। इसका लेट्स कंप्लीट द एंटायर लेक्चर ना, देन आई गिव यू दिस QR कोड। पूरा लेक्चर फिनिश करने के बाद हम लोग कर ले। आई विल बी टेकिंग इज कैलकुलस, कैलकुलस लें या फिर ODE लें, चलो कैलकुलस ले लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कैलकुलस। ठीक है, सी you will find topics similar to your 12th class. Some of the topics are similar, but not many. In 12th class, we have studied the functions in one variable, two variable का function हमने पढ़ा है. But here the function will be of, in 12th class we studied the functions of one variable, y as a function of x, है ना, ये हमने पढ़ा है. But in this, in UPSC Maths Optional, we will be studying a function of two variable or a function of several variable. ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस रहेगा. टॉपिक्स लिस्ट आउट कर देते हैं.
टॉपिक्स में सबसे पहले तो वही चीज़ है, लिमिट आपको पढ़नी है। लिमिट सबसे पहले तो बेसिक्स आप पढ़ोगे यार, सबसे पहले तो आपको बेसिक्स पढ़ने हैं। बेसिक्स जैसे कि फंक्शंस पढ़ लेना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिगो फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं आपको। गूगल से मिल जाएंगे, नहीं तो मेरे चैनल पर भी अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा फंक्शंस में यू बेसिकली सीधा 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, 1 1 प्लस ऑन टू फंक्शन क्या होता है। देन प्लीज स्टडी द ग्राफ्स एज वेल, ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जैसे पॉलिनॉम कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ देख लेना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देख लेना, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ देख लेना, e⁻x का ग्राफ देख लेना, लॉगरिथम का ग्राफ देख लेना। तो ये सारे ग्राफ्स आपको अंडरस्टैंड करने हैं। ऑल्सो जैसे मॉड्यूलस फंक्शन देख लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लेना, है ना, सिग्नम फंक्शन देख लेना, है ना, सिग्नम फंक्शन देख लेना जो 3 वैल्यूज़ लेता है, -1 0 एंड 1। इसके अलावा डोमेन और रेंज पढ़ लेना। डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ ए फंक्शन, रेंज ऑफ ए फंक्शन, कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस होता है, ये पढ़ लेना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन फॉर्मूले, ये आपके काम आएंगे। डेफिनेट इंटीग्रल तो सब्जेक्ट ही है ना। तो ये इम्पोर्टेंट बेसिक्स हैं फॉर कैलकुलस। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, लिमिट्स पढ़ना है, कॉन्टिन्यूटी पढ़ना है, कॉन्टिन्यूटी यू हैव टू स्टडी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, डिफरेंशिएबिलिटी इन केस ऑफ सिंगल वेरिएबल एज वेल एज इन केस ऑफ मल्टीपल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल के केस में भी प्लस मल्टीपल वेरिएबल के केस में भी। ठीक है, ये सारा पढ़ना है आपको। उसके अलावा जैसे रोल्स थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन तो बहुत ही बुरा रिपीट होता है, रोल्स थ्योरम, दैट्स वेरी इजी। और इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, ये पढ़ लेना। इसके साथ ही आप पढ़ोगे एक्सट्रीमा ऑफ ए फंक्शन, दैट मीन्स मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन, मैक्सिमा प्लस मिनिमा ऑफ फंक्शन, ये भी पढ़ोगे आप। उसके बाद अपना आता है जैसे मैक्सिमाइजिंग द फंक्शन, मिनिमाइजिंग द फंक्शन। देन देयर इज डिफरेंशिएबिलिटी इन सेवरल वेरिएबल, एक्सट्रीमा इन सेवरल वेरिएबल, एक्सट्रीमा इन सेवरल वेरिएबल फंक्शन, सेवरल वेरिएबल फंक्शन, जिसमें आपका एक लेग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर आता है, लेग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, लेग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि इन दिस टॉपिक वी विल बी गिवन एन इंडिपेंडेंट फंक्शन टू एक्सट्रीमाइज, बट इन Lagrange's मेथड ऑफ मल्टीप्लायर वी विल बी गिवन द फंक्शन विद सम कंडीशन, एंड उस कंडीशन के अंदर हमें उसको वो करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है। डिफरेंशिएबिलिटी में सिंगल वेरिएबल के केस में अपना एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, 12th में भी हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना, सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करना, रिमेंबर दैट। तो वो भी आपको पढ़ना है बिकॉज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दैट। उसके लिए यू हैव टू रिवाइज लाइक वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इन सब के फॉर्मूले। ठीक है, Lagrange's मेथड ऑफ मल्टीप्लायर ये आ गया। देन वी हैव द, ये तो हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस। नाउ वी हैव द इंटेग्रल कैलकुलस, इंटेग्रल कैलकुलस। इसमें बेसिकली यू हैव टू स्टडी इम्प्रॉपर इंटेग्रल विच इज मैनी अ टाइम्स आस्क्ड इन रियल एनालिसिस, बट यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ इम्प्रॉपर इंटेग्रल।
Then there is definite integral. The questions are asked from definite integral. ठीक है, तो आपको लगेगा कि इतना बेसिक कौन पूछेगा, बट पूछा जाता है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल. देन प्लीज रिवाइज बीटा गामा फंक्शन एज वेल. नॉट टू डीपली, उसमें पीएचडी नहीं करनी है. यू नीड टू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ बीटा गामा फंक्शन. होता है क्या है, किस तरह से अप्लाई करते हैं. देर आर सम क्वेश्चंस विथ सम प्रूफ्स, है ना. मैनी टाइम्स मतलब वो पूछ लिए जाते हैं और बेनिफिशियल होते हैं इन सम अदर क्वेश्चंस. ठीक है, बीटा गामा फंक्शन. देन ट्रिपल इंटेग्रल एंड डबल इंटेग्रल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. डबल इंटेग्रल, सरफेस एरिया, ट्रिपल इंटेग्रल, वॉल्यूम. ट्रिपल इंटेग्रल, that means the volume integral. ठीक है, सो कैलकुलस हो गया ये. नाउ लेट मी टेल यू द बुक्स फॉर कैलकुलस. बुक्स भी मैं बता देती हूँ इन केस यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी ना. बुक्स में सबसे पहले तो आपकी मलिक एंड अरोड़ा बुक आती है. मलिक सविता, मलिक एंड अरोड़ा, येलो कलर की बुक आती है. बहुत एक तरह से अच्छे बुक है, प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से दी गई हैं. फिर एक प्रिंसिपल ऑफ रियल एनालिसिस, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस है पीएमए. फिर एक प्रिंसिपल ऑफ रियल एनालिसिस है, प्रिंसिपल ऑफ रियल एनालिसिस बाय शांति नारायण एंड एमडी राय सिंघानिया. शांति नारायण प्लस एमडी राय सिंघानिया, एमडी राय सिंघानिया. ठीक है, बोथ द बुक्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल. Many a times the questions are asked directly from these books only. फिर आपके पास अगर कुछ और कवर करना चाहते हो, जैसे बीटा गामा फंक्शन बहुत अच्छे से दिया गया है कृष्णा सीरीज की इंटेग्रल कैलकुलस में. कृष्णास इंटेग्रल कैलकुलस. इसमें ना एक टॉपिक एल हॉपिटल रूल इज ऑल्सो देयर. इंटरमीडिएट फॉर्म्स इज ऑल्सो देयर. Questions are asked from that. I'm really sorry, not intermediate, indeterminate forms. Just a moment. Indeterminate forms. Indeterminate forms. L Hopital rule है ना, ये है. Also there is this one topic, अभी मुझे याद आया था, Euler's function है ना, आइलर्स इक्वेशन, आइलर्स फंक्शन. ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक है कृष्णास इंटेग्रल कैलकुलस में. बीटा गामा फंक्शन ऑल्सो देर आर सम गुड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिपल इंटेग्रल इन कृष्णास इंटेग्रल कैलकुलस. देन कृष्णास डिफरेंशियल कैलकुलस भी है, जो कि पहले यूजफुल होती थी, अब नहीं है. सो इफ आई सजेस्ट यू, इफ यू गो फॉर परचेजिंग द बुक्स, then 1, 2, 3, these 3 books are more than enough. Malik and Arora, Shanti Narayan and MD Rai Singhania and Krishna's integral calculus. ठीक है, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नाउ कैलकुलस इज डन. ठीक है, चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट टॉपिक आई वुड बी टेकिंग इज वेक्टर एनालिसिस. Vector analysis. Reason being, जब आप कैलकुलस पढ़ रहे होगे ना, when you will be studying calculus in double triple integral, you will be studying the change of variables, changing the variables into polar coordinates, cylindrical coordinates, spherical coordinates. एंड वेक्टर एनालिसिस में वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत अल्टीमेट यूज़ होता है वहाँ पर, है ना. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कैलकुलस के बाद वेक्टर एनालिसिस पढ़ना हो सके तो, है ना. तो बिकॉज वेक्टर एनालिसिस इज नॉट ए बिग सब्जेक्ट. इट्स लाइक द सिलेबस इज नॉट वेरी लार्ज एंड द सिलेबस इज नॉट वेरी बिग. तो आपको सही रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा.
अब क्योंकि मैंने चेंज ऑफ वेरिएबल की बात करी तो मैं यहाँ पर आपको जैकोबियन लिखना भूल गई हूँ, जैकोबियन, ठीक है। द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम जैकोबियन, बट इवन इफ आई फॉरगॉट, यहाँ पर जब आप चेंज ऑफ वेरिएबल्स पढ़ते तो जैकोबियन डेफिनेटली पढ़ते हैं ना। सो दिस इज काइंड ऑफ द टॉपिक फ्रॉम द इंटेग्रल एज ओनली, इंटेग्रल एंड डिफरेंशिएशन, मतलब जैकोबियन यूज होता है इन इंटेग्रल कैलकुलस। चलो, so vector analysis में let me first list out the topics, then I'll tell you the books. First of all, the basics of vectors. The basics of vectors. Basics में क्या क्या पढ़ोगे? Difference between scalar and vector, obviously वो तो सबसे पहली चीज़ है। Basics में जैसे dot product of vectors, the cross product of vectors, है ना, and then इनके जो geometrical meanings हैं वो भी पढ़ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स, ट्राइंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, है ना, तो ये भी पढ़ोगे। फिर उसके बाद अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है, देन देयर इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यू विल बी स्टडिंग, है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ोगे। देन देयर इज, बस बेसिक्स में इतना ही है, और तो इसमें इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट दीज विल बी वेरी यूजफुल, आपके लिए यूजफुल रहेंगे आगे। देन डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस, इसमें फिर आपका आ जाता है द डेल ऑपरेटर, द डेल दैट मीन्स ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड देन कर्ल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ये तीन चीज़ें पढ़ोगे। फिर अपना इंटेग्रल वेक्टर कैलकुलस आता है, इंटेग्रल वेक्टर कैलकुलस, इसमें अपनी एक तो लाइन्स इंटेग्रल है, लाइन इंटेग्रल, लाइन इंटेग्रल, फिर एक सरफेस इंटेग्रल है, सरफेस इंटेग्रल, देन देयर इज वॉल्यूम इंटेग्रल। आप बोलोगे ये सारी चीज़ें तो कैलकुलस में पढ़ी हैं, बिल्कुल, these are just the same. Line integral is your single integral, surface integral is your double integral, volume integral is your triple integral. But यहाँ पर these are not evaluated directly. These are evaluated using some theorems. There are 3 theorems relating these integrals. The theorems are Green's theorem, Green's theorem, the Stokes theorem, Stokes theorem, then there is Gauss divergence theorem, Gauss divergence theorem. So these 3 theorems, vector analysis is incomplete without these 3 theorems. These are definitely asked in vector analysis. इनमें से 2 तो definitely आ जाती हैं. Now talking about the books, books में आपका दो books हैं. Both the books are from Krishna series. एक तो, और दोनों का शायद नाम भी सेम ही है, वेक्टर एनालिसिस करके है एक बुक, वेक्टर एनालिसिस बाय कृष्णा, बाय कृष्णा। देन देयर इज ए बुक कॉल्ड वेक्टर कैलकुलस बाय कृष्णा, वेक्टर कैलकुलस बाय कृष्णा। ये थोड़ा सा ब्लू कवर में है, ब्लू कवर, और ये पिंक, ऑरेंज और वाइट, ऑरेंज वाइट कवर में है। If your basics are clear ना, if your basics are clear or you can go through basics from some other book, then this book is only important. ये book basics को cover करेगा, and this book will cover your differential calculus and integral calculus plus integral calculus. Do not leave any question of this book. Direct questions आ जाते हैं. So do not leave any question from this book, whether it is example or whether it is unsolved. Unsolved is solved. Do each and every question of this book. Okay, so this is all about vector analysis. Now let's move forward. You can take a screenshot or you can note it down. We have so far covered linear algebra, calculus and vector analysis. Now talking about ordinary differential equation. Let's first discuss its syllabus, then we will discuss its book list. बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है यार ये, मतलब इट्स तो फेवरेट ऑफ माइन। एक बुक आती है जस्ट ODE एंड PD बाय MD राय सिंघानिया, MD राय सिंघानिया।
I mean so sorted. MD Rai Singhania. ठीक है. ODE plus PD. This book is recommended for both. And this book is like sole solution for ODE and PD. इसके अलावा इसकी एक एडवांस्ड बुक आती है जो कि इम्पोर्टेंट है. एडवांस्ड ODE एंड PD जो कि इम्पोर्टेंट है. एक तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को कवर करेगा, एक लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास को कवर करेगा. देख लो यार, क्योंकि ये बुक काफ़ी कॉस्टली है एडवांस्ड वाली. सो अगर कहीं से नोट्स मिल जाते हैं तो वहाँ से कवर कर लो, या फिर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. चलो ओके, तो लेट मी टेल यू द टॉपिक्स. इसके लिए आपका जो बेसिस फॉर्म करेंगे, जो टॉपिक्स आपका बेसिस फॉर्म करेंगे ना, दोज आर बेसिकली एक तो आपका डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन. डिफ्रेंसिएशन प्लस इंटीग्रेशन. These two topics will form the basis of ODE and PD both. बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, मतलब एक तरह से यू शुड नो द फॉर्मूले सारे पता हो तो ज़्यादा अच्छा है इसमें. ऑल्सो इसका जो बेसिस फॉर्म करेंगे एक वो वाला भी है. एक वन मोर सब्जेक्ट इज देयर यार, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले. सो यू हैव टू नो देम एज वेल. ये तो आपको यार कैलकुलस में पढ़ोगे ही, है ना, तो वो वहीं से याद रह जाएंगे. सो ODE में सबसे पहले तो आपकी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन पूछा जाएगा. ऑर्डर एंड डिग्री यू शुड नो, बट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट यू शुड नो द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकेंड, क्योंकि नहीं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा रूल लगाना है. ODE is all about rules. There are many rules in ODE. Now, so if you don't know the order and degree का difference, you will not be able to recognize the type of equation. Then you will not be able to recognize the rule to be applied. कौन सा rule apply करना है, ठीक है. So that's why. चलो ठीक है, visible है ना? It's visible I guess. मुझे है. चलो ओके. सेकेंड में यू फॉर्मेशन के बाद देयर इज द टॉपिक ऑन ऑर्थोगोनल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस. Based on it we have the orthogonal trajectory. ठीक है. There is a topic of oblique trajectory as well. छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है, आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, नॉट नेसेसरी. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में आपकी एक तो वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशंस हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस इक्वेशन, then there is exact equation, reducible into exact or directly exact, then there is linear differential equation, डायरेक्ट लीनियर प्लस रिड्यूसिबल इंटू लीनियर, दोनों ही इसमें कवर्ड है, ठीक है. देन देर इज बाय डायरेक्ट मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना. सो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री. देन फोर्थ, देन वी हैव द linear differential equation, linear plus higher order, linear plus higher order. Linear plus higher order is solved basically using the complementary function plus particular integral. So मैं इसको इस तरह से याद करवाती हूँ. हायर ऑर्डर CF प्लस PI वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है. लीनियर है, हायर ऑर्डर की है. देन देयर इज a टॉपिक कॉल्ड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. पैरामीटर जो कि यूज होगा, यू कैन आई मीन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज ए मेथड टू सॉल्व हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस. बट यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो ये वैसे तो थर्ड ऑर्डर के लिए भी है, बट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर
ऑल राइट, सो सेकेंड ऑर्डर के लिए ये आपको करना पड़ेगा. देन देर इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नॉन लीनियर, जो लीनियर नहीं होती है, तो इसके लिए वो वाले मेथड्स हैं सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर पी वाई एंड एक्स, फॉर पी कॉमा वाई कॉमा एक्स. ठीक है, ये व्हेन यू विल बी डूइंग दिस ना, तो आपके दिमाग में ये याद आ जाएगा कि मैम ने ये बोला था सॉल्वेबल फॉर पी कॉमा वाई कॉमा एक्स. सेवंथ आपके पास जैसे इसी से निकल कर एक टॉपिक आता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, देखो डिफरेंस क्या है, जब आप फोर्थ टॉपिक पढ़ोगे ना लीनियर प्लस हायर ऑर्डर, ये तब होगा जब आपके पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होंगे, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, या फिर अगर वेरिएबल कोएफिशिएंट्स भी हैं तो यहाँ पर एक टाइप आती है कॉशी आइलर फॉर्म. कॉशी आइलर फॉर्म which is a particular type of equation. ठीक है, in the fourth topic, but in seventh topic the differential equation can have any coefficient, any coefficient. ठीक है, तो मैं इसको पी क्यू मेथड बोलती हूँ क्योंकि इसमें हम लोग पी क्यू आर को रिलेट करके सोल्यूशन फाइंड करते हैं. पी क्यू मेथड, दिस इज लाइक मस्ट, करना ही है ये आपको क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है इससे हमेशा. Then there is Laplace and inverse Laplace. Laplace plus inverse Laplace. Inverse Laplace. इसमें ना particularly please focus on some of the functions. जैसे इस बार भी एक फंक्शन आया था डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, वो मैंने पढ़ाया हुआ था अपने स्टूडेंट्स को. मैं आपको उसका वो शॉर्ट्स भी बना के मैं डालने वाली थी कल. इसमें आपके कुछ फंक्शंस हैं जैसे यूनिट फंक्शन है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन. तो ये सारा आपको ज़रूरी है. आई मीन देर आर 2-3 फंक्शंस, सो वो आपको जैसे एक ई टू द पावर पाई एस वाला फंक्शन भी है. सो देर आर 2-3 फंक्शंस विच यू नीड टू कवर इन लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास. बाकी सब कवर करना है जो इसके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले प्लस मेथड, प्लस मेथड्स. Along with it, the question is asked to solve ordinary differential equation using Laplace and inverse Laplace. So इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को ऐसे भी पूछा जाता है solving equation using Laplace and inverse Laplace. Solving equation using ODE. ODE को solve करना using Laplace and inverse Laplace. ठीक है, so these are all the topics basically in ODE. इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा. सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं फाइल शेयर कर दूंगी ये वाली. चलो, ODE इज डन, सॉर्टेड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एनालिटिक ज्योमेट्री. सो फार वी हैव कवर्ड लीनियर अलजेब्रा. लीनियर अलजेब्रा हो गया है. वी हैव कवर्ड कैलकुलस, वी हैव कवर्ड वेक्टर एनालिसिस, वी हैव कवर्ड ODE. सो ओनली 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट, एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ST, जो मैंने आपको बाद में करने को कहा था. सो नाउ लेट्स फर्स्ट टेक एनालिटिक ज्योमेट्री. एनालिटिक पहले ले लेते हैं. देखो, एक तो ना एनालिटिक में आई कैन नॉट टेल यू द थिंग्स, आई मीन देयर आर नो सब टॉपिक्स इन एनालिटिक. जैसे आपके पास सबसे पहले यू विल बी स्टडिंग द प्लेन, है ना. सी आप ऑर्डर पूछ रहे थे ना, ट्राई स्टडिंग कैलकुलस, देन वेक्टर एनालिसिस, देन एनालिटिक ज्योमेट्री. Try maintaining this order because in analytic geometry vector will be used. The basics of vector will be used like direction ratios and direction cosines. थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं. So even if you study it independently, that's up to you. So first you will be studying plane. Then 2 plane combined together makes up a line. So you will be studying line. Then you will be studying skew lines. Lines not intersecting each other, not parallel to each other.
पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी ना. ओके, skew lines, plane line, then there is shortest distance between the skew lines, shortest distance. Then there is the topic from sphere, the sphere. Okay, then there is topic from the cone, then there is topic from the cylinder, then there is the central conicoid, in which we will be studying the ellipsoid, the hyperboloid, the paraboloid. ठीक है. Then there is a last topic, reduction of equation. See, आपको लग रहा होगा कि the shortest syllabus it has, but the most complicated syllabus it is. I mean, analytic is highly conceptual. Analytic बहुत conceptual है, so you have to study. This is like my favorite. Analytic का तो मुझे I mean बहुत ही वैसा feedback मिलता है. I mean everyone loves analytic, है ना. मतलब क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो देखो क्या होता है ना. एक सेकेंड रुको. एक तो ना प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, मुझे इसको ऑपरेट करना नहीं आता है. मतलब आई मीन आता है मुझे खुद से मुझे प्रैक्टिस नहीं है तो इसलिए. ओके, सो इट्स गुड नाउ. ठीक है. सो आई वांटेड सम स्पेस हियर. Highly conceptual it is. For example, in plane, you will be studying two planes intersecting each other. That is the line, है ना. Plane perpendicular to another plane, the plane parallel to another plane, plane containing a line का concept आएगा, plane parallel to a line का concept आएगा, line intersecting the plane where the midpoint lies on the plane. I mean there will be many such concepts. So I can't just tell you कि plane में क्या क्या topics हैं. It is like there will be scenarios, there will be different kinds of concepts. जैसे वैसे ही line में भी when you will be doing straight line ना, there will be topics like line intersecting each other, line perpendicular to another line, line parallel to another plane, line parallel to line which is perpendicular to another plane, but this line is parallel to another plane. So there will be many concepts based questions here. Line की symmetric form, general form. Similarly, skew lines में equation of the skew lines. Then there is shortest distance between these two lines, shortest distance की equation, shortest distance की length. Then in sphere also, we don't just study the sphere independently. We study sphere intersecting the plane. I mean sphere touching the plane या फिर sphere intersecting the plane. इस तरह से two spheres intersecting each other, है ना. तो we will be studying a lot of things. यहाँ पर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस फाइंड करना, ग्रेटेस्ट सर्कल. सो इट्स ऑल कॉन्सेप्ट. सिमिलरली कॉन की इक्वेशन, plane cutting the cone into perpendicular generators, 3 mutually perpendicular generators का concept. So reciprocal cone का concept. Similarly cylinder simple है. Cylinder is the very basic topic in analytic geometry. Then there is central conicoid में वही सब चीज़ें, normal, equation of the normal, equation of the tangent, equation of enveloping cylinder, enveloping cone. So I can't just write down कि each and every type यहाँ पर, इसलिए इसका syllabus आपको ऐसे लग रहा है, but it's like there is so much hidden inside these topics. अब इसके लिए जो book है ना, एक ही book है कृष्णा सीरीज की, Krishna's analytic geometry, more than enough. I'll show you the proof in shorts में मैं proof दिखाऊंगी. Entire paper was from this book. Entire paper was from the course that we did in our class. So ये book आप solely follow करो. उसके अलावा test series दे देना. More than enough in analytic geometry. So ये note down कर लो. Then we'll discuss the statics and dynamics. तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक वी नीड टू डिस्कस. इसके लिए तो 11th क्लास के फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले याद कर लेना. ओडी तो आप पढ़ोगे ही तो वो भी इसमें काम आएगा. 9th 10th की जो ट्रिगो के फॉर्मूले हैं ना, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज पी बाई एच, ये वाले फॉर्मूले. ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड
स्क्वेयर, रोम्बस, इन सब की जो प्रॉपर्टीज है. सो ओनली द बेसिक थिंग्स यू शुड नो. नाउ द रिजिड बॉडी मैकेनिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स. डायनामिक्स समथिंग दैट इज इन मोशन, the body in motion. Statics, the body is at rest, equilibrium. Dynamics में आपका सबसे पहले SHM आएगा, rectilinear motion, motion in a straight line. ठीक है. Then there is your central force, central orbit, motion towards the center. Then there is constrained motion. ठीक है. बॉडी इफ इट इज रिस्ट्रिक्टेड, तो रिस्ट्रिक्टेड अगर है तो मोशन वो हमें पढ़ना, कंस्ट्रेन मोशन. देन देर इज प्रोजेक्टाइल मोशन, देन केपलर्स लॉज, केपलर प्लेनेटरी लॉज, इनवर्स स्क्वायर लॉ. सी यही सारे डूएबल टॉपिक्स हैं, बाकी सब तो कंफ्यूज हो जाओगे आप. I mean, see, we don't have physics oriented brain. Let's just accept that. Physics inclined brain हमारा नहीं है. So whole mathematics basically. तो आपको थोड़ा सा तो वो अंडरस्टैंडिंग लैक करेगी. But these topics you can do easily. Because इनमें मैथ्स ज़्यादा यूज़ होता है, फिजिक्स उतना यूज़ नहीं होता है. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स. एक कोई बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगेगा फिजिक्स का. रेस्ट इज जस्ट मैथ्स. कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन, भर के कैलकुलेशन है सेंट्रल ऑर्बिट में तो. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक्स, इसमें थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगेगा. जैसे इसमें आपका एक वो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है ना, फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, बैलेंस आउट करना फोर्सेस को, बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस. ठीक है. देन देर इज, रिमेंबर दैट मूवमेंट, कपल मूवमेंट, वो सारा चीज़ें इसमें आएगा फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम में. एंड देन देयर इज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. आई मीन द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाय बैलेंसिंग और बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. ये ज़्यादा इजी मुझे लगता है क्योंकि ये मैथमेटिकली होगा थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा फिजिक्स का लगेगा. देन PVW के बाद अपना कॉमन कैटेनरी है, कॉमन कैटेनरी टॉपिक. कॉमन कैटेनरी इज डूएबल, इसमें सिर्फ इक्वेशंस हैं, मैथमेटिकल है ज़्यादा ये. देन स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो डूएबल. स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज ऑल्सो डूएबल. सो दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स यू कैन फोकस अपॉन. आपका जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो ईजिली हो जाएगा इनमें, और एक क्वेश्चन जिसमें ODE वेक्टर का वेटेज ज़्यादा रहता है तो वो पिक कर लेना, तो आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन B में आराम से. ठीक है, कंपल्सरी के अलावा. चलो, इसके लिए बुक मैं बता देती हूँ आपको. सी मैं तो आई मीन जो बुक्स हम लोग रेफ़र करते हैं वो बुक, एक तो आपके पास ना गोल्डन स्टैटिक करके बुक आती है, गोल्डन स्टैटिक. ठीक है, प्रॉब्लम्स के लिए सही है, इसके प्रॉब्लम्स के लिए, फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स के लिए, बट मोस्टली अनसॉल्व्ड है, मोस्टली जो है अनसॉल्व्ड है. सोल्व्ड क्वेश्चंस कर लेना जो सोल्व्ड इसमें गिवन है. सेकंड आपके पास जो कृष्णा सीरीज की स्टैटिक्स की बुक आती है, कृष्णा स्टैटिक्स, पर्पल कलर की बुक है ये. उसके अलावा कृष्णाज डायनेमिक्स की बुक, कृष्णाज डायनेमिक्स, इसके तो सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ठीक है, सेम इसके साथ भी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको. सो दीज आर द 3 बुक्स यू कैन रेफर फॉर स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स. ठीक है, सो दिस इज इट. थोड़ा आपको टफ लगेगा ये टॉपिक, मतलब फिज़िक्स ओरिएंटेड है बस इसलिए टफ लगेगा, और कुछ नहीं है. बाकी मैथ्स तो आप पढ़ ही रही हो. तो देखो चीज़ें, बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैंने कहा तो कंपैरेटिवली ईजियर है इसके अलावा. ओके, बाकी मेरा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो. जैसे क्वेश्चंस ज़्यादातर कोर्स में से ही रहते हैं, तो क्लास में बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको समझ आ जाती हैं, और जो चीज़ें ऐसे होते हैं जैसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो हम लोग साथ में फिर सॉल्व कर लेते हैं. तो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स बहुत अच्छे से कवर हो जाता है. ऑल राइट, देखो अब
स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स हो गया, एनालिटिक ज्योमेट्री हो गया, ओडी हो गया, वेक्टर एनालिसिस हो गया, कैलकुलस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया. So we have covered. This lecture helpful, do let me know in the comment section. And our course is live for 2026 UPSC Maths Optional. 15th of March से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. All right then, bye everyone, take care.